just need. Also, I hope you have solved the sheet which I sent in last. Did most of you solve what I sent in the last in that Google Classroom? Okay. So guys, I just need you to give me 2 minutes because I was trying to log in from 6 o'clock, but somehow my laptop is not working. So wait. Also, is meanwhile, are there any problems like which you are having in strengthening and weakening? Because we will be completing weakening today. If you have any doubts, meanwhile, please feel free to ask me while I try to switch on my laptop because I'm using my phone right now. Are there any doubts or anything you want to talk about relating CLAT or anything? मैम क्लैट की स्ट्रैटेजी कैसे रखें आप? स्ट्रैटेजी मतलब आप क्या लाइक हाउ टू स्टडी ऐसा कुछ आप पूछ रहे हो? यस मैम। तो आई थिंक लाइक सिंस डू यू हैव लाइक स्कूल का लाइक बोर्ड सामने है क्या आप लोगों का अभी? बिकॉज आई टुक अ ड्रॉप ईयर सो आई कुड डिवोट माई होल टाइम टू क्लैट. So, how many of you have boards? Okay, I see one person who has boards. Yeah, that's near. So I'll say give like now since it's from May only, that's 1 month left, and I'd say boards are as much important as CLAT is. But the thing is कि आप 2 घंटा दिन CLAT को दे सकते हो, and the thing is right now the things which you need to focus on are the things which you can practice, like which you have already know. And GK, like GK is something ना, वो रोज like नया कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे आते ही रहते हैं. तो आई थिंक जीके का आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा. लाइक each week, like let's say you start from Monday you switch on that thing, a GK today. If you go to YouTube, you will get their monthly videos or any other compendium which you are following or what your teachers here are teaching. Like take any compendium and finish it within वो 2 घंटा जो दिन में आप दे रहे हो. And throughout the next week, if you are starting with November के current affairs, like make sure that आपको नवंबर मंथ के सब पता है. लाइक सी सिंस द क्लैट पैटर्न इट गॉट चेंज ना, सो द थिंग इज कि अभी आपको यू हैव टू फोकस ऑन नोइंग अ टॉपिक मोर रादर दैन सब टॉपिक्स आप जान रहे हो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा. So let's say you take 5 most important issues which happened in November. मुझे अभी याद नहीं आ रहा नवंबर में you had like US elections, and that was one of the major things which CLAT can focus on and they will focus on. Like US election से passage आएगा ही, either it's in legal or it's in English or it's in GK. So what you can do is you can like take US elections one day एंड आप इंटरनेट खोल के बैठो और यूएस इलेक्शंस के अंदर जो आते हैं लाइक यू रीड एवरीथिंग विच इज देयर फॉर यूएस इलेक्शंस. That's one way you can proceed with CLAT, like GK. Then you take on compendiums and you read each one of them thoroughly. Since I'm like I teach CR, so for CR I'll say कि within those 2 घंटे ना, if you take 20 CRs for each day, and if you try doing that, 20 CR questions should ideally take you about 12 to 13 minutes. So I think you can spare that time for doing. For English, I asked you to repeat. I am begging you कि यार कुछ नहीं पढ़ना क्लैट के लिए, like अगर आपके boards, I totally get that because like problem होता है to balance boards and CLAT together. बट न्यूज़पेपर पढ़ो. लाइक दिन में अगर 20 मिनट भी आप पढ़े ना न्यूज़पेपर, तो दैट्स मोर देन एनफ. क्योंकि न्यूज़पेपर्स लाइक अगर आप पढ़ते हो ना ढंग से, तो उससे लाइक यू कैन डेवलप योर इंग्लिश, यू डेवलप योर लीगल, यू डेवलप एज नॉट लॉजिक आई से बट जीके. So you're getting 3 sections, so you don't need to practice them alag se. So I'll say give 1.5 hours for GK each day, like compendium पढ़ो GK today, या फिर जो चैनल आपको पसंद है like compendiums उठाओ और उसको पढ़ते रहो. Take like 20 questions for CR.
CBSE English is same as CLAT, then that's a great thing, right? You have an added advantage. So even if you're not from CBSE or from ICSE or state board or any other school, that does not matter, but you have an advantage. So reading comprehension तो आपके board के preparation से ही हो जाता है. So I'd say just read the newspaper for half an hour, give 15 minutes to logic, और 1 आवर 1.5 आवर्स आप जीके करो, आपका 2 घंटे में पूरा क्लाट का तो ये तो सेट हो जा रहा है. लाइक अगर लाइक 2 घंटे मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग. मतलब ऐसा नहीं कि आप जस्ट बुक खोल के बैठे हो. लाइक ट्राई टू डिवोट योर माइंड इनटू इट, क्योंकि इट्स हाई टाइम. इट्स barely 1.5 months left for CLAT. तो हम तो like I suggested that it's time we pull up our socks. And also, is there anyone here who took a drop here? I'm last year graduation. हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही. I'm last year graduation, ma'am. Oh, Okay, okay. third year. Okay, that's a great thing ना. तो I guess, oh wow, that's wonderful. So that even तो ऐसा है तो आपको तो फिर like ज़्यादा idea रहेगा ना, like what to do and what not to. So that's a great thing. I think if we follow this strategy ना, and like I'm saying this to all of you, तो I guess हो जाना चाहिए. Okay, that's about like CLAT strategy goes. Any other questions or comments, anything? Guys, I just need ना 2 minutes क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी तक नहीं खुल रहा for some reason. Okay, ma'am. Guys, any other doubts which you have मैम for? ग्रेजुएशन वाले एनालिज्म में रहते हैं क्या मैम 5 ईयर कोर्स के लिए? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक इट्स वेरी डूएबल. अगर आप क्लैट 5 years के लिए बैठ रहे हो तो इट्स लाइक यू हैव अ एडेड एडवांटेज, क्योंकि आपने सिंस यू हैव ऑलरेडी लाइक और ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, तो you'd even have like more awareness than people who are just like boards देके. So I think that's a great thing, and people do that. Like लोग graduation complete करके भी they sit for CLAT. So I don't think that's like any problem. That's a good thing, I will say. Okay guys, give me 2 more minutes. अगर मेरा लैपटॉप नहीं खुला तो I'll just ask Akshat to take the class, क्योंकि फोन से तो I cannot share my screen ना. Yeah, I think if you can get hold of the old magazines ना, like personally I used to follow प्रतियोगिता दर्पण, क्योंकि उसमें ना बहुत क्लियर से लाइक दिया हुआ रहता है. लाइक एक टॉपिक उस महीने में जो टॉपिक हुआ था, तो दे डील विद इट वेरी एनालिटिकली, क्योंकि ये क्यों हुआ, इसका बाद में क्या हो सकता है. तो आई थिंक इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ पुराने वाले फ्रॉम एनी लाइक न्यूज़पेपर वाला, तो आप कर सकते हो. दैट्स अ ग्रेट मैगजीन. बट द प्रॉब्लम इज रीड प्रतियोगिता दर्पण एंड अदर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स ओनली व्हेन यू आर थरो. लाइक आपको पता है कि इस महीने में ये सब चीजें हुए थे, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में ना उसके डेप्थ में लाइक दे डील विथ थिंग्स. तो इसीलिए आई विल से कि अगर आप यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू हैव डन एवरीथिंग देयर इज टू बी डन दैट मंथ, तो उसके बाद ही यू पिक अप दीज मैगजीन एंड स्टार्ट रीडिंग. क्योंकि टाइम नहीं है. लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू रीड देम. लाइक इफ यू हैव डन रेड देम, देन लाइक 10 on 10 आई गिव यू लाइक कूडोज टू यू. बट अभी व्हाट आई से इज नए से स्टार्ट मत करो, क्योंकि
टाइम लगेगा, लाइक बोर्ड्स है, अगर इफ यू आर अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट और इफ यू थिंक यू कैन स्पेयर टाइम, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, फिर आप कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुडंट रेकमेंड. ऑल्सो गाइज, लाइक कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्या लॉजिकल रीजनिंग में? I think, like, that is true because you have to read so much. Like, I don't think 4,000, like, you have to read almost 4,000 words. Plus, agar aap questions wale wo add karo, to it's going to be even more. So, the only thing now, like, you can do about that at this point of time is newspapers because usse reading speed improve hoti hai and everything. तो we can't help it, like क्लैट का पैटर्न ही वैसा कर दिया. तो you have to be, have an like extremely thorough command over English. तो वो तो like कुछ कर नहीं सकते, we are all like bound by that. Okay guys, so I have bad news thoda. Test series, I don't know, but we are having a mock next week, I guess, because we thought this week may like we will be like making yourself, you guys, very familiar with the class pattern. And since like syllabus ज़्यादा start भी नहीं हुआ है, like complete नहीं हुआ है, so I guess we'll be having a mock this weekend only. So don't worry. So give mock tests, like start giving mock tests. Also, guys, I'm really sorry, but my laptop is not working. So I'll be sharing my screen from my phone. तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, बट you have to like थोड़ा सा, like I'm really sorry about it. Just give me 2 minutes and I'll share my screen. Okay, ma'am. No problem. ओके गाइज, आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन. सो द थिंग इज ना कि अगर कोई डाउट हो तो यू हैव टू पुट ऑन योर ऑडियो, क्योंकि मुझे लाइक चैट बॉक्स नहीं दिखेगा. I'll try my best to know to occasionally like try to see what's there in the chat box, but you'll have to like unmute yourself and speak, okay? So I'm sorry for this, but yeah. Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Also, guys, what question did we do last day from weakening? Does anyone remember? Okay. So first of all, the thing is, पहले ये बताओ. I will like go from 6 से हमने start किया था last day. Does anybody have like any doubts about the questions? पहले ये बताओ and then I'll just move on to the next. I remember we did 7, we did 8, we did 9, 10, 11 or 12. So we'll start from 13 today. I hope there are no questions. Mm.
Abhipsha, is there a question? No, ma'am. Okay. So we'll start from 13. So before we, start a question, तो I'll just give you a reminder once again कि weakening हम लोग कैसे solve करते हैं. तो द थिंग इज जब वीकनिंग होगा ना, लाइक जैसे स्ट्रेंथनिंग में हम कर रहे थे, द फर्स्ट थिंग विच वी यूज टू डू वाज हम लोग ढूंढते थे कि एक पैसेज का, लाइक एक पैसेज के लिखने के पीछे ऑथर का क्या आइडिया हो सकता है. दैट वाज आवर मोटिव, लाइक दैट वाज आवर फर्स्ट थिंग दैट वी नीडेड टू फाइंड आउट. सो वीकनिंग में भी सेम, तो वी विल फाइंड आउट द कंक्लूजन फर्स्ट कि इस पूरे पैसेज में ऑथर हमें क्या बोलना चाह रहे हैं. तो अगर हमें एक बार कंक्लूजन आ गया, तो ऑलवेज रिमेम्बर यू डोंट वीकेन लाइक कुछ भी एवरी रैंडम सेंटेंस उठा के आप वीकेन नहीं करते हो. बट व्हाट यू डू वीकेन इज यू वीकेन द कंक्लूजन. तो इसके लिए तो अब तो स्ट्रेंथनिंग तो वीकेनिंग में आपको कंक्लूजन मिल गया, चलो ठीक है, वी फाउंड आउट दैट दिस इज आवर कंक्लूजन एंड वी हैव टू वीकन इट. सो हाउ डू वी वीकन इट? जो कंक्लूजन आपको आएगा ना, उसको आपको लाइक क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ने के पहले यू हैव टू नेगेट देम. हाउ डू यू नेगेट देम? तो सपोज अब हमारा कंक्लूजन आया, द कैट किल्ड द माउस. तो व्हेन वी आर नेगेटिंग ना, तो हमें दिमाग में ये थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए कि answers like will be somewhat on the lines of the cat did not kill the mouse. like ये आंसर नहीं होगा, हम आपको नहीं बोल रहे कि यही अपना आंसर है, यही एकदम मार्क करके चले आओ, ये आंसर नहीं है तो हम बोल देंगे नहीं, क्वेश्चन ही गलत है. बट इट विल बी समथिंग अलोंग दीज लाइन्स. तो अगर हमारा नेगेटेड कंक्लूजन बना दैट द कैट डिड नॉट किल द माउस, और ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्हेन द माउस वाज इन द रूम द कैट वाज आउटसाइड, so that means he cannot kill the mouse na, and that is a still valid answer. So that is why you have to like मन में थोड़ा सा negate कर लेना है आपको, and उसी के lines में you have to build up on the answer. आपको options देखना है, आपको सोचना है कि जो हमने negate किया क्या वो उसको follow कर रहा है, and then you proceed with the answer. Am I clear? अभी तक we just recapitulated everything, like नया कुछ नहीं किया हमने. We have done this in the पहले वाला क्लास, उसके पहले वाला क्लास, हम लोग यही करते रहे हैं. इतना तक इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आई होप इतना तक तो क्लियर होगा. ओके, डन. तो लेट्स स्टार्ट विथ 13. आई विल गिव यू 2 मिनट. नहीं, पहला क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. स्टार्टअप कंपनीज फाइनेंस्ड बाय. हेलो मैम. हाँ हाँ, हेलो. हाँ मैम, थोड़ा जूम कर सकते हो क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ श्योर. यस मैम. अभी क्लियर है? यस मैम, फाइन. ओके, थैंक यू. So we are starting with question number 13. तो 13 में we'll just go through it together और next वाला question आप करोगे. ये first है, that's why I'm helping out. So हमारा question है, startup companies financed by venture capitalists have a much lower failure rate than companies financed by other means. Source of financing therefore must be a more important causative factor in the success of a startup company than are such factors such as personal characteristic of the entrepreneur, the quality of strategic planning, or the management structure of the company. ठीक है, तो लेट्स गो इट थ्रू इट वन बाय वन. इधर बोल रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप कंपनीज है ना, स्टार्टअप कंपनीज वो मतलब होते हैं ना, लाइक हम एक दिन सोचे कि चलो हम कुछ बेचेंगे. दिस इज नॉट ऑन अ वेरी इंडस्ट्रियल स्केल, लाइक पहले दिन ही हम जाके एकदम 2-3 फैक्ट्री बना रहे हैं. बट हम लाइक छोटा कंपनी, लाइक छोटा घर से अपना काम कर रहे हैं, दैट इज अ स्टार्टअप कंपनी, which means company which is started by an individual on a very low small scale. So startup companies which are financed by venture capitalists have a much lower failure rate than companies financed by other means. तो ये बोल रहे हैं कि जब कोई वेंचर कैपिटलिस्ट कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट कर रहा है ना, तो उनका ये जो फेलियर रेट है वो कम है rather than companies financed by other means. तो सोचो लाइक एक कंपनी है जहाँ पे एक कैपिटलिस्ट ही इज इन्वेस्टिंग इनटू इट,
और दूसरा कंपनी है जहाँ पे हम एक बैंक से जाके लोन लेके आई एम स्टार्टिंग दैट कंपनी. So according to our question, which company has a lower chance of failing? वेंचर The startup company which is financed by venture capitalist है वेंचर ना. कैपिटलिस्ट. हाँ, ये लाइक बहुत प्लेन लॉजिक है, तो उसका चांस कम रहेगा फेल करने का. तो इससे हमें पता चल रहा है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग देयरफॉर मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है स्टेटमेंट से कि आपका पैसा जहां से आ रहा है ना, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर than factors such as personal characteristics of entrepreneur, the quality of strategic planning. Like आप खुद मेहनती हो कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कितना स्ट्रैटेजी लेके अपना कंपनी को प्लान कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट कैसा है, ये फर्क नहीं पड़ता. हमें क्या फर्क पड़ता है कि जो जो कंपनीज ये वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, that company will be more successful, that has higher rates of being a successful company than a company जो दूसरे किसी मीन से हो रहा है. तो गाइज हमने पहले क्लास में व्हाट डिड वी डिसाइड, लाइक व्हाट डिड वी लर्न, लाइक कंक्लूजन निकालना है. तो कैन एनीवन फाइंड द कंक्लूजन? इसमें थोड़ा कंक्लूजन इधर ही है, ये छोटे वाले में ही है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट द कंक्लूजन इज? तो वी लर्नड इन आवर पहले वाली क्लास में कि व्हेन यू सी कंक्लूजन ना, ये ना हम एवरी क्लास में बोल रहे हैं गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, दिमाग में घुसा लो. बट रिमेंबर दिस, व्हेन यू सी वर्ड्स लाइक दस, देयरफॉर, सो, हेंस, बिकॉज, हेंसफोर्थ, देयरफॉर, उसका मतलब है कि यही हमारा कंक्लूजन है. इधर कहीं पे हमें दिख रहे हैं ये कंक्लूडिंग वर्ड्स? Therefore, must be a more important. Exactly. Who was it? Like I cannot see the name, but like Ma'am whoever it Aisha. was. Okay, Aisha. okay, very good, Aisha. I cannot see your name, but good job. So as Aisha identified, इसका मतलब है, तो हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज अ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी rather देन दूसरा फैक्टर्स. तो इसको आप खुद नेगेट कर लो, क्या हो सकता है? बहुत इजी है. सोचो क्या नेगेट हो सकता है इसे? तो नेगेट का मतलब है कि आप सिर्फ उसको उल्टा बना दो. इधर था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि कहाँ से मेरा पैसा आ रहा है, दैट इज फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट. सो मेरा उल्टा हो गया कि दैट फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से है. गॉट इट? इतना तक क्लियर होगा आई सपोज. Yes, ma'am. तो लेट्स सी कि अपना ऑप्शंस अभी क्या हो सकता है. Has anyone solved yet? क्योंकि हम बहुत देर से I don't see answers. Okay. Let's go through it one by one. Option A हमें बोल रहे हैं venture capitalists tend to be more responsive than other sources of financing to changes in a startup company's financial needs. अब guys, can anyone tell me ये question में हमें problem कहाँ पे है? Option number A में where's the problem? Can anyone identify? अब देखो हमारा जो वो कंक्लूजन था ना, उस कंक्लूजन में हमें दिया हुआ था कि वेंचर कैपिटलिस्ट जब इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें उससे फायदा ज्यादा होगा हमारे स्टार्टअप बिजनेस को. और यहाँ बोल रहे हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट टेंड टू बी मोर रेस्पॉन्सिव देन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. तो ये तो स्ट्रेंथन कर दिया ना, क्योंकि ये तो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट ही कर दिया ये ऑप्शन, है ना. तो ये स्ट्रेंथनिंग हो गया. तो अगर ये क्वेश्चन स्ट्रेंथनिंग का रहता तो आप ए ऑप्शन तो पक्का मार्क करते. इतना क्लियर है व्हाई ए इज नॉट वीकनिंग, क्योंकि ए स्ट्रेंथन कर रहा है. देखो कंक्लूजन को. लेट्स गो टू बी.
बी में बोल रहे हैं द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी is a less important factor in the long term success than are the personal characteristics of the entrepreneur. अब बी बोल रहा है कि देखो, इधर बोल रहे हमारे कंक्लूजन में दे वर सेइंग कि फैक्टर्स लाइक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे दो नॉन इम्पोर्टेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो एकदम रेलेवेंट ही नहीं हो रहा. तो बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. ये लोग बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. बट वो तो नहीं है ना, हमें तो बोलना है कि द सोर्स जो है पैसे का वो लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट से हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ये हमें प्रूव करना है. और बी क्या किसी तरह कर रहा है? आई डोंट थिंक बी कर रहा है, बट डज एनीवन थिंक अदरवाइज? I see two answers, D, D. Yeah, okay. So let's go to C. More than half of all new companies fail within 5 years. तो ठीक है ना, 5 साल में उनको फेल करने दो, 10 साल में करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाफ ऑफ न्यू कंपनीज, ये तो पूरा ही इरेलीवेंट है. लाइक ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में आए ना, लाइक क्वेश्चन पेपर में, तो आप तो सबसे पहले सी को एलिमिनेट करोगे क्योंकि ये एकदम ही इरेलीवेंट है. डी बोल रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट बेस देयर डिसीजंस टू फंड स्टार्टअप on factors such as characteristic of entrepreneur and quality of strategic planning. तो ये हमें बोल रहे, तो हमारा कंक्लूजन क्या था? हमारा कंक्लूजन था कि हमारे पैसे का सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. सोर्स अगर वेंचर कैपिटलिस्ट से हो तो आवर दैट इज बाउंड टू सक्सीड. बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये वेंचर कैपिटलिस्ट अगर कर रहे हैं तो क्यों सक्सीड कर रहे हैं? क्योंकि they are basing it on factors such as characteristics of entrepreneur and quality of strategic planning. लाइक वही तो, लाइक ये जो उन्होंने लाइक क्वेश्चन में हमें बोला है दैट क्वालिटी, ये फैक्टर्स मैटर नहीं करते, डी में बोल रहे हैं कि यही फैक्टर्स मैटर करता है. तो ये डायरेक्टली हमारे कंक्लूजन को नेगेट कर रहे हैं, है ना? तो डी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? I see two correct answers by Abhipsha and Milind. So congratulations. I hope this question is clear क्योंकि ये easy ही था. I won't say बहुत easy था, but it was on the easier side. So are there any doubts? क्योंकि हम समझा देंगे फिर से. Guys, are there any doubts? No, ma'am. Okay, so I'll just move on to question number 14. So I'll say कि since we solved one question, so let's see if you can solve this or not. I'll give you 2 minutes. अभी टाइम है 6:49. We'll meet at 6:51. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, then we'll try to solve it together. मैम कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होती है. अच्छा, आप क्या इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या फिर इन जनरल लाइक इन जनरल मैम. अच्छा, दैट इज अ वेरी लाइक कॉमन थिंग. लाइक आई टोटली गेट यू. आप एक काम कर सकते हो, लाइक whenever you find new words ना, लाइक आपको ऐसा कोई वर्ड नजर में आया कि आपने वो पहले कभी नहीं पढ़ा, तो ना आप एक कॉपी बना लो, तो उसमें लिख लो कि ओके दिस वर्ड्स मीन दिस. तो इससे लाइक आपकी वोकैबुलरी भी ज्यादा इंक्रीज होगी. और न्यूज़पेपर हम लाइक आई होप दैट यू आर स्टडिंग, even when you are doing the newspapers now and you find something which is let's say a word which is very unfamiliar to you, एक डिक्शनरी निकाल लो, या फिर अगर आपका फोन है या कुछ भी है घर पे फिजिकल डिक्शनरी है, उसको लेकर थोड़ा मीनिंग निकाल लेना. तो फिर like I hope your vocabulary and word base is going to increase within 1-2 महीना only. मैम Okay. मैम हाँ. मैम डेरेगुलेशन का मतलब क्या होगा? डीरेगुलेशन मतलब ये जो आपका लाइक बेसिकली ये है कि आपका जो प्लेन्स होते हैं ना, तो ये प्लेन्स लाइक कब कहाँ जाएंगे, तो वो चीज लाइक उसे रेगुलेशन कहते हैं. कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि ठीक है चलो ये प्लेन आज
चेन्नई से बैंगलोर जाने वाला है, अगर वो प्लेन लाइक अचानक लेट्स से कि काम करना बंद कर दिया तो वो चेन्नई से बैंगलोर नहीं जाएगा, तो दैट इज डीरेगुलेशन, मतलब वो बंद कर दिया, लाइक चलना अपने रूट पे बंद कर दिया. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. गाइस, डू आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन या फिर 2 मिनट और दे? ठीक है, चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं. इफ यू आर रीडिंग इट देन डोंट लिसन टू मी, आई जस्ट लाइक से इट फॉर द अदर किड्स. So here the question is, since the deregulation of airlines, delays at the nation's increasingly busy airports have increased by 25%. To combat this problem, more of the takeoff and landing slots must be allocated to commercial airlines. तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब से लाइक प्लेन्स चलना लाइक बंद कर दिए, लाइक सपोज पहले 5 प्लेन्स थे, अभी 3 चल रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 डीरेगुलेट हो गए एयरप्लेन. तो 2 बंद होने के कारण व्हाट हैपेंड इज, जो अपने इंडिया के जो बिजी एयरपोर्ट्स है ना, तो उधर डीले एकदम 25% ज्यादा बढ़ गया. लाइक अगर आपका डीले पहले 10 होता था, अभी दैट स्टार्टेड टू बिकम 12.5 उसका डीले. तो इसी प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए ये जो आपके टेक ऑफ और लैंडिंग स्लॉट्स होते हैं ना, मतलब आपका प्लेन आके जहाँ पे उतरेगा, जहाँ से वो टेक ऑफ करेगा, ये जो स्लॉट्स होते हैं एट द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स, दे मस्ट बी एलोकेटेड टू कमर्शियल एयरलाइंस. क्योंकि लाइक प्लेन्स अभी कम हो गए हैं, तो जितना आपका ये लैंडिंग स्लॉट, आपका टेक ऑफ स्लॉट है, क्या कर दो, इसको कमर्शियल एयरलाइंस, मतलब ये जो पैसेंजर वगैरह ये लाइक जो प्लेन्स है जो गवर्नमेंट नहीं ओन करता, तो आप इनको दे दो. तो गाइज, कैन एनीवन आइडेंटिफाई कि हमारा कंक्लूजन क्या है इधर? मेरा Okay, I see answers where you're saying B, B, B. Okay. Let's see. 14 में, तो इधर हमारा कंक्लूजन है कि टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम ऑफ ये जो डिले हो रहा है, इसी प्रॉब्लम को लाइक कॉम्बैट करने में, लाइक संभालने में, व्हाट यू हैव टू डू, you have to allot takeoff and landing slot to the busy airports, to commercial airlines. इतना क्लियर है? अब हमारे क्वेश्चन स्टेम पे आते हैं. Which of the following, if true, casts the doubt on the effectiveness of solution proposed above? सोल्यूशन ऑथर ने हमें ये दिया है कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट किसको दे दो, कमर्शियल एयरलाइंस को. तो हमें ऐसा कुछ एक ऑप्शन निकालना है जिससे ये जो सोल्यूशन ऑथर ने दिया है वो सोल्यूशन एकदम वीक हो जाए. तो लेट्स सी. ए बोल रहा है, the major causes the major causes of delays at the nation's busiest airport are bad weather and overtaxed air traffic control equipment. ये बोल रहे हैं कि आपका जो ये डिले होता है ना, ये डीरेगुलेशन के कारण नहीं हो रहा. आप क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन देखो, इधर बोल रहे हैं कि सिंस द डीरेगुलेशन ऑफ एयरलाइंस, बट इधर दे आर सेइंग कि द मेजर कॉजेज ऑफ डिले एट द नेशंस बिजिएस्ट एयरपोर्ट आर बैड वेदर एंड ओवरटैक्स ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट. मतलब आप अगर आप कमर्शियल एयरलाइंस को स्लॉट अलॉट करोगे भी, तो आपका डिले तो हो रहा है क्योंकि वेदर खराब है और ये जो हमारा इक्विपमेंट है वो बहुत ओवर टैक्स्ड है. तो उससे फायदा नहीं होगा ना कुछ अगर आप कमर्शियल एयरलाइंस को करोगे. सो ए सीम्स टू बी अ वेरी पॉसिबल आंसर, है ना? डू आई सी अदर्स? Let's come to B. Like since many people answered B, so let's see B में क्या है. Since airline deregulation began, the number of airplanes in operation has increased by 25%. अब guys ये देखो, like the people who chose B,
इधर बोल रहे हैं कि जब से डीरेगुलेशन हुआ ना, तो द नंबर ऑफ एयरप्लेन्स इन ऑपरेशन ये तो इंक्रीज हो गया है। तो ये तो हमारे कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि इधर बोला है कि इस इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल स्लॉट्स दे दो और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट हमारे तो लाइक एयरप्लेन्स है ही ज्यादा, तो नंबर ऑफ एयरप्लेन्स इन ऑपरेशन हैज इंक्रीज। मतलब अगर 5 में से 2 डीरेगुलेट हो गए हैं, तो 3 सपोज दिन में 6 घंटे वो लोग चलते थे, वो अभी दिन में 12 12 घंटे चल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, वो मेरा 25% मेरा प्लेन का वो प्रॉब्लम हो गया। तो अगर हम ज्यादा कमर्शियल एयरलाइन स्लॉट देंगे भी, तो मेरा ट्रैफिक तो सेम ही रहेगा ना, तो इससे मेरा फायदा तो नहीं हो रहा। तो बी तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथन ही कर रहा है। तो बी cannot बी द आंसर। इज दिस क्लियर? क्योंकि लाइक कुछ लोगों ने ना बी को आंसर किया था, तो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि बी क्यों नहीं होगा। इतना तक समझ आया ना? Yes, I ma'am. hope B is clear. Let's come to the next. C में over 60% of the takeoff and landing slots at the nation's busiest airport are reserved for commercial airlines. तो 60% टेक ऑफ और लैंडिंग स्पॉट कमर्शियल के लिए है। मतलब आधे से ज्यादा मेरा रिजर्व किसके लिए है? कमर्शियल के लिए। मेरा फिर भी मेरा डीरेगुलेशन का प्रॉब्लम, मेरा ये बिजी होने का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम ज्यादा कमर्शियल अलॉट करेंगे स्लॉट्स, तो इससे इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज ना, द लाइक द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज। तो सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। इन ऑप्शन डी, a small Midwestern airport doubled its allocation of takeoff and landing slot. The number of delays that were reported decreased by 50%. अब guys ये देखो, बहुत ध्यान से देखो, like I saw one person who answered D. So the thing is, when it's your option is D ना, but इधर दिया हुआ है कि after a small Midwestern airport, तो इधर आपका जो नेशन है, तो दे आर गिवन कि डिलेज एट द नेशंस इंक्रीजिंगली बिजी एयरपोर्ट। तो हमारे डी में बोला है कि आफ्टर अ स्मॉल मिड वेस्टर्न एयरपोर्ट, तो इधर आपको बोला कि नेशंस के इंक्रीजिंगली बिजी एयरपोर्ट पे होगा। तो इधर आपका डी में बोला है कि स्मॉल मिड वेस्टर्न एयरपोर्ट, तो ये एक छोटे से एयरपोर्ट में हुआ है। तो दिस डज नॉट मैटर ना। लेकिन ये ऑप्शन अगर ये नहीं दिया होता ना कि आफ्टर अ स्मॉल मिड वेस्टर्न एयरपोर्ट, तो दिस वुड बी अ परफेक्टली वैलिड आंसर, क्योंकि इसमें बोला है द नंबर ऑफ डिलेज वर रिपोर्टेड टू बी डिक्रीज बाय 50%, है ना? तो हैज एवरीवन गॉट द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन? डी क्यों Yes, नहीं ma'am. होगा? दैट इज वाई ए इज द आंसर, क्योंकि इधर बोल रहे हैं कि डीरेगुलेशन ये लाइक ये पूरे अपने सोर्स को ही अटैक कर रहा है। दे आर जस्ट सेइंग कि ये जो डिले हो रहा है ये डीरेगुलेशन की वजह से नहीं हो रहा, ये किसके लिए हो रहा है? क्योंकि मेरा वेदर ही खराब है। तो अगर मेरा वेदर खराब है, तो हम ज्यादा लैंडिंग स्लॉट किसकी लाइक कमर्शियल एयरलाइन को दे रहे हैं, हम कम स्लॉट दे रहे हैं, मैटर नहीं करता ना, क्योंकि मेरा बैड वेदर तो मेरा दूसरे रीजन से हो रहा है। So is 14 clear? That is why A is the correct answer. Okay, so I'll just go to option number 15. 15 mein they are saying the Acha, just read 15. I'll give you 2 3 minutes to solve. We'll start solving it at 7:03. Just read through the question. Okay, it's 7:03. I see D, B, B, B. Okay, so D and B. Let's see. The more frequently, also guys, okay, no, I will not start reading this. Also, wait, I see 4 people who have answered, and I see 7 people in this class. So I will assume two things: the rest are not understanding the question,
और या फिर लाइक आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इट इज। हम डांट नहीं रहे, आई जस्ट जेन्युइनली वांट टू नो, क्योंकि लाइक क्लैट में हम नहीं रहेंगे आपको लाइक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। तो यू आइदर गिव एन आंसर और यू गिव व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई सी 6 आंसर्स, किसी एक ने। ओके आयुष ने नॉट नो। ओके परफेक्टली फाइन, दैट्स ऑल राइट। ऑल्सो आयुष, एक बात बता दो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है लाइक, क्योंकि इवन इफ इट्स अ रॉन्ग आंसर ना, आई वोंट माइंड, बट इफ यू हैव अ डाउट आई वांट यू टू टेल इट टू मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। क्योंकि हम तो लाइक एक पूरा 2-3 घंटा एक क्लास लेके हम चले जाएंगे, बट अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि क्लास में हम नहीं रहेंगे टू एक्सप्लेन एनीथिंग, यू हैव टू डू द होल थिंग ऑन योर ओन। How can I solve questions? I mean, this is a very vague doubt, but then yes, it's completely valid. The thing is, but you are following the class, right, Ayush? Like how we are proceeding. Which part have you not understood, Ayush? Because I'll explain again. Okay, so Ayush, हम ना, I will be starting with question 15. तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझे बोलो, ठीक है? So I'll just start with the question. So the question is, the more frequently employees take time to exercise during working hours each week, the fewer sick days they take. Even employees who exercise only once a week during working hours take less sick time than those who do not exercise. Therefore, if companies started fitness programs, the absentee rate will decrease significantly. तो इधर बोल रहे हैं कि जब एम्प्लॉयज वर्किंग आवर के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, वो सिक डेज कम लेते हैं। इवन वो एम्प्लॉयज जो लाइक वीक में एक बार वर्किंग आवर में वर्कआउट करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करते हैं, इवन दे टेक लेस सिक टाइम देन दोज हु डू नॉट एक्सरसाइज एट ऑल। लाइक एक आदमी जो एक वीक के एक दिन वर्किंग आवर के टाइम एक्सरसाइज कर रहा है, even he is taking less sick time than वो person। Is there any doubt? अच्छा, तो even he is taking less time than those who जो एकदम ही एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे। So the thing is, therefore, अब देखो ये हमारा कंक्लूजन बन गया। Therefore, if company started fitness program, एब्सेंटी रेट बहुत कम हो जाएगा। अगर कंपनी खुद बोलेंगे कि चलो आओ, हम ये अपना कंपनी का प्रोवाइडेड फिटनेस प्रोग्राम है, तो उधर पीपल जो लाइक एब्सेंटी रेट लेते हैं ना, लाइक जो सिक लीव लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो वी हैव टू वीकेंड दिस। हाउ कैन वी वीकेंड? लेट्स सी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर कंटेंशन वाज बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, तो हम ए से देखते हैं। Employees who exercise during working hours occasionally fall asleep for short periods of time after they exercise. हम ये क्या कुछ अफेक्ट कर रहा है? वो सोते हैं, वो नहीं सोते? हमें तो डील करना है कि वो जो एब्सेंट होते हैं, लाइक वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो कम एब्सेंट होते हैं। तो अगर वो वर्कआउट के बाद सो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये तो ज्यादा कुछ आई डोंट थिंक इट इज दैट रेलेवेंट। So I don't think that A is the answer. Is everybody agreeing with me? Yes, ma'am. Okay. तो B में आते हैं। Employees who are frequently absent are the least likely to cooperate with or to join a corporate fitness program. अब ये वाला देखो, एम्प्लॉयज जो लाइक एब्सेंट ही रहते हैं, जो सिक लीव लेके ही रहते हैं, तो दे आर लीस्ट लाइकली टू कोऑपरेट और ज्वाइन अ कॉर्पोरेट फिटनेस प्रोग्राम। तो अगर वो एब्सेंट रहते हैं ना, तो वीक के द डेज दे आर प्रेजेंट देयर, तो वो लोग उधर भी लाइक वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमारा जो कंक्लूजन है कि द एब्सेंटी रेट इन कंपनीज विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, दिस इज गेटिंग वीकेंड। क्योंकि ये लोग तो एब्सेंट रहते हैं और ये कंपनी में ये वो कॉर्पोरेट फिटनेस प्रोग्राम में ज्वाइन भी नहीं करेंगे, तो ये एब्सेंट ही रहेंगे।
तो बी सीम्स लाइक वैलिड हो सकता है, बट until and unless you have went through all the options ना, कभी कोई भी ऑप्शंस मार्क नहीं करना, ठीक है ना? तो we'll move to C. B seems like ये वैलिड हो सकता है, बट सपोज लाइक मेरे बाद वाले ऑप्शंस में दिया हुआ रहे like इससे कुछ स्ट्रॉन्गर, तो we'll mark that. So that's what I'm saying. सी बोल रहा है एम्प्लॉइज हु एक्सरसाइज ओनली वंस अ वीक इन देयर कंपनीज फिटनेस प्रोग्राम यूजुअली आल्सो एक्सरसाइज आफ्टर वर्क। तो ठीक है, वो लोग कंपनी के फिटनेस प्रोग्राम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो घर जाके भी कर रहे हैं। इट्स नॉट मेकिंग अ डिफरेंस ऑन द अमाउंट ऑफ एब्सेंटी लीव्स दे आर गोइंग टू टेक, राइट? So I don't think C is not that valid of an answer. So that's why let's come to option number D. डी क्या बोल रहा है? एम्प्लॉइज हु एक्सरसाइज इन देयर कंपनीज फिटनेस प्रोग्राम यूज देयर वर्किंग टाइम नो मोर प्रोडक्टिवली देन दोज हु डू नॉट एक्सरसाइज। तो ये बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कंपनी के फिटनेस प्रोग्राम में, तो ये अपना वर्किंग टाइम लाइक ज्यादा प्रोडक्टिवली नहीं यूज कर रहे जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। मतलब दो आदमी, एक एक्सरसाइज कर रहा है, एक एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी से उतना ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा। दिस वुड हैव बीन अ पॉसिबल आंसर इफ ये वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सेंटी लीव्स, कौन कितना ज्यादा लीव ले रहा है, कौन कितना ज्यादा एब्सेंट हो रहा है ना? तो प्रोडक्टिविटी लाइक हम 10 आदमी का काम एक पर्सन कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि हम घर में कितना दिन रह रहे हैं, हम ऑफिस में कितने दिन प्रेजेंट है। तो डी इज दैट्स व्हाई नॉट द आंसर, हेंस व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर? बी। क्योंकि जो एब्सेंट रह रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन अपना कंपनी वाला ऑल्सो। इज 15 क्लियर? कुछ डाउट्स है बता दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऑल्सो गाइज मेरा ना लैपटॉप चालू हो गया। गॉट इट मैम। ओके। ऑल्सो आयुष, आपको समझ में आया क्या, लाइक हाउ यू गो अबाउट क्वेश्चंस? तो हम आपको बोले ना कि कंक्लूजन जो होगा ना वो आपको सोचना पड़ेगा कि ऑथर ने किस आइडिया से ये पैसेज लिखा था, क्योंकि whenever we are writing something ना, we need to have a valid reason as to why we are writing that. तो that is the main author का intention is the conclusion, कि author हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो that is a very academic way of finding the conclusion. इसके अलावा if you see words like thus, because of this, therefore, hence, so, henceforth, if you see words like this, आप आंख बंद करके समझ जाना कि this is my conclusion. Is it okay? Okay, so I'll just go to question number 15. आप एक बार पढ़ लो, I'll give you 2-3 minutes to go about it. Let's start at 7:15. मैम 16। 15 हो गया मैम, 16। Oh, sorry, 15 हो गया sorry. मैम। Okay, I'm so sorry. अच्छा 16 का लाइक आप क्वेश्चन पढ़ लो, देन वील मूव टू द ऑप्शंस। लाइक व्हेन यू आर डन विद द क्वेश्चंस थोड़ा बता देना, देन आई विल मूव टू दैट अदर थिंग।
ओके गाइस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट दे दो। आई जस्ट, मेरा लैपटॉप ना अभी काम कर रहा है, तो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग, हम लैपटॉप से शेयर कर रहे हैं। हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यार आवाज आ रही है ये कैसी? गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. वो आपको आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं नहीं, लाइक कुछ दूसरी आवाज आ रही है। अभी बंद Yes, है। ma'am. ओके, अभी आ रही है ना क्लियरली? हाँ, yes, ma'am. ओके। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, 2 मिनट रुको। Okay, is my screen audible? Like, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Okay, so let's start with question 16. अब ये पढ़ लो। Guys, have you read the question? Then I'll move to the options. Guys, have you read the question? Okay. Okay, like इसका options में like जाना थोड़ा problem है, तो we'll just discuss the question, then we'll move to the option. 16 का the question is, according to Tri-State Transportation Authority, making certain improvements to the main commuter rail line will increase ridership dramatically. ये जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है ये बोल रहे हैं कि अगर आप वो जो मेन वाला रेल लाइन है ना, उधर आप थोड़े वाले इम्प्रूवमेंट कर दोगे तो नंबर ऑफ पीपल हु आर राइडिंग द ट्रेन, इट विल इंक्रीज बहुत ज्यादा। ओके, so this is why the authority plans to finance these improvements over the course of 5 years by raising tolls on 2 highway bridges along the route of rail line. तो इसलिए अथॉरिटी क्या प्लान कर रहे हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स ये लोग बनाएंगे ना, तो इसके लिए पैसे चाहिए। तो व्हाट दे विल डू इज, ये जो टोल्स होते हैं ना ऑटोमोबाइल का, तो ये 2 हाईवे ब्रिजेस के ऊपर जो टोल होता है ये उसे बढ़ा देंगे। Although the proposed improvements are needed, the authorities' plan for securing the necessary funds should be rejected because it would unfairly force driver to absorb the entire cost of something from which they receive no benefit. तो ये अब देखो, although है ये word, what word is here, although, so this is what our conclusion is. तो ये अब बोल रहे हैं कि
चलो माना कि वी नीड दीज इम्प्रूवमेंट्स, बट ये जो अथॉरिटी का प्लान है ना, ये लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि हम लोग रेल का भाड़ा कैसे दे, ये ऑटोमोबाइल से लाइक हम लोग ये गाड़ी वगैरह का टैक्स बढ़ा के हम लोग रेल लाइन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ऑथर बोल रहा है कि ये जो अथॉरिटी का जो प्लान है ना कि ये रेल लाइन को इम्प्रूव करेंगे, इस प्लान को रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग ड्राइवर से पैसे लेंगे, एक कार ड्राइवर से पैसे लेंगे जिन्हें ट्रेन की कोई जरूरत भी नहीं होगी, लाइक दे विल नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। इज द क्वेश्चन क्लियर? तो क्वेश्चन स्टेम बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू will cast the most doubt on the effectiveness of the authority's plan to finance the proposed improvements by increasing bridge tolls। तो ये बोल रहा है कि we have to negate what, ये जो प्लान है कि हम लोग ये ब्रिज टोल को ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, तो वी हैव टू नेगेट दिस कि दिस प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो लेट्स सी। तो आप लोग एक बार ऑप्शन ए पढ़ लो, देन वील गो टू वो दूसरा पेज का बी सी डी पढ़ लो फटाफट। Then we'll move to these three options. Okay, so let's start. I hope you've read, but anyways we need to finish 3 questions abhi. So we'll start with A. Before the authority increases toll on any of the area bridges, it is required by law to hold public hearings at which objections to the proposed increase can be raised. तो इधर ये what is this dealing with? They are saying कि अथॉरिटी को वो टोल लगाने से पहले एट ब्रिजेस दे हैव टू गो टू द कोर्ट एंड गेट अ पब्लिक हियरिंग। तो बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। हमको इधर बोल रहा है कि ये जो उनका प्लान है हमें ये नेगेट करना है कि what they are doing is to make railway lines, they are taking tolls on automobiles, बट ये बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल टोल के पहले यू हैव टू गो टू कोर्ट, विच इज नॉट अ वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड नहीं है ना? इज दिस क्लियर? आई डो नॉट सी एनी आंसर येट। ओके, सो बी सी डी में एक बार देख लो इफ देयर इज एनीथिंग यू थिंक कैन बी द आंसर और नॉट। Option B is saying whenever bridge tolls are increased, the authority must pay a private contractor to adjust the automated toll collecting machine. अब B का ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि जब हम ब्रिज का ये जो टोल है ना ये हम बढ़ा रहे हैं, तो जो अथॉरिटी है उनको एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फिर से पैसे देने पड़ेंगे टू एडजस्ट द टोल कलेक्टिंग। So, do you think B can be the answer? I think B can very possibly be an answer.
क्योंकि अगर उनको लाइक वो पैसे ले रहे हैं किसी से, एक ट्रेन रेल लाइन वगैरह से, लाइक दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स सो दैट दे कैन मेक रेलवे लाइन्स एंड दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंग। तो ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर फिर से उन्हें एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने पड़े, then my whole exercise is futile, right? So B can be an answer. अब C को देखते हैं। Between the time, also remember guys, must pay a private contractor. कितना पे करना है नहीं दिया। अगर मुझे 100 रुपए पर व्हीकल मिलता है और हमें 1 रुपए देना पड़ता है तो that is not valid. तो always remember कि इससे अगर अच्छा कोई आंसर हुआ तो this will downright not be the answer. Okay? C देखते हैं। Between the time a proposed toll increase is announced and the time the increase is actually put into effect, many commuters buy more tokens than usual to postpone the effects of the increase. अब ये तो पूरा ही बेकार है क्योंकि ये बोल रहे हैं कि many commuters buy more tokens than usual to postpone the effects. तो ठीक है, मतलब इससे कुछ हमारा कंक्लूजन को फर्क पड़ रहा है क्या? People are buying more tokens so that ये जो इफेक्ट है ये पीछे हो जाए। तो ये तो रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे। अब डी में आते हैं। Do I see any answers yet? डी बोल रहा है when tolls were increased last year, when tolls were last increased on the two bridges in question, almost 20% switched to a slightly longer alternative route that has since been improved. अब guys ये ना ध्यान से समझो। The first thing which I told you was कि conclusion को identify करना सीखो, है ना? तो ये मेरा जो conclusion है, इधर conclusion में ये लोग बोल रहा है कि because it would unfairly force drivers to absorb the entire cost of something they'd have no benefit. इधर बोल रहा है कि हम अगर कोई गाड़ी वाले से पैसे ले रहे हैं तो दे आर नॉट रिसीविंग एनी बेनिफिट्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू राइडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड हियर मेरा अजम्पशन कर रखा है कि वो लोग तो ट्रेन पे चढ़ेंगे ही नहीं, दैट इज व्हाई दे विल रिसीव नो बेनिफिट। बट मेरे ऑप्शन जो डी है इधर बोल रहा है कि टोल्स हमने जब लास्ट ईयर इंक्रीज किया था ना ये दोनों ब्रिजेस पे, तो इधर का जो 20% ट्रैफिक है ये वो ट्रेन वाले रूट में शिफ्ट हो गया। तो आई थिंक डी एकदम डायरेक्टली नेगेट कर रहा है, तो बी कैन बी आंसर, है ना डी? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Is question number 16 clear to all of you? गाइस फिर से समझाओ क्या 16 क्लियर नहीं है तो बोल दो। Explain one more time, ma'am. ओके आई विल। अब देखो, अच्छा फिर से क्वेश्चन समझाओ या फिर सिर्फ आंसर्स बोलूं? Answers. ओके, सो आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। तो आई जस्ट गो विद द ऑप्शंस वंस अगेन। हमारा जो 16 का ऑप्शन ए है दैट इज सेम, बिफोर अथॉरिटी इंक्रीजेस टोल्स ऑन एनी ऑफ द एरिया ब्रिजेस इट इज रिक्वायर्ड कि आपको सेम चीज के लिए ना यू नीड पब्लिक हियरिंग्स जहाँ पे लोग आके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बट हमारा कंक्लूजन है कि उनको ये टोल नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे ड्राइवर्स जो है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पूरे का नेगेशन है कि टोल रखना चाहिए क्योंकि ड्राइवर्स को बेनिफिट मिलेगा। यू जस्ट डायरेक्टली नेगेटेड, लाइक अगर ना है तो उसको हाँ कर दो, अगर हाँ है तो ना कर दो। तो ए में अगर आपका पब्लिक हियरिंग हो भी रहा है तो इट्स नॉट मेकिंग अ डिफरेंस क्योंकि हमें लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर ड्राइविंग द ऑटोमोबाइल्स।
तो A इसके लिए it's not happening. Is this clear? A is clear. We'll go one by one. A clear है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then we'll go to B. अब B में बोल रहा है whenever toll bridge tolls are increased, authority must pay a private contractor to adjust the automated toll collecting machine. जब ये ब्रिज को टोल जब ये ब्रिज का टोल हमें टैक्स इंक्रीज होता है ना, तो जो अथॉरिटीज है दे हैव टू पे अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर टू एडजस्ट द ऑटोमेटेड टोल कलेक्टिंग मशीन. तो अब ये देखो इधर बोल रहा है कि जब आप लेट्स से पहले हमारा टैक्स 10% था, अभी इंक्रीज होके वो 12% हो गया है. तो because it is now 12%, तो the authority has to make the necessary changes to their toll का machine. तो उन्हें 10% से ज्यादा 12% करना है, तो इसके लिए they are taking a small charge from authorities. अब ये सोचो ये बट यू हैव टू रिमेम्बर कि ये चार्ज वन टाइम चार्ज है. क्यों? क्योंकि इधर तो आपका अगर हो गया एक बार दैट आपका टैक्स कलेक्ट हो गया, आपका मशीन एडजस्ट हो गया, आपको बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना. तो दैट इज बी कैन नॉट बी द आंसर. सी बोल रहा है बिटवीन द टाइम अ प्रपोज टोल इंक्रीज इज अनाउंस्ड एंड द टाइम इट इज एक्चुअली पुट इनटू इफेक्ट. लाइक हम आज अनाउंस कर रहे हैं कि ठीक है हम नेक्स्ट मंथ से वी विल डू द टोल इंक्रीज, ये टैक्स 10 से 12% हो जाएगा और ये नेक्स्ट महीने होगा. तो देयर इज अ गैप ऑफ 1 month इन बिटवीन द टाइम आई अनाउंस एंड द टाइम इट इज गोइंग टू बी पुट इनटू इफेक्ट, है ना. तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टोकन खरीद रहे हैं सो दैट ये जो इंक्रीज हो इसका इफेक्ट बाद में हो. बट दिस इज नॉट माई कंक्लूजन. तो ये तो डायरेक्ट ही रेलेवेंट है. लाइक क्वेश्चन में आया तो फर्स्ट आप तो इसको एलिमिनेट करोगे क्योंकि ये तो एकदम डायरेक्टली मतलब इरेलेवेंट ही है. तो दैट इज वाई सी इज नॉट द आंसर. अब डी क्या बोल रहा है? डी इज सेइंग व्हेन टोल्स आर इंक्रीज्ड इन द लास्ट टू ब्रिजेस. जब पहली बार ये टोल्स इंक्रीज हुआ था ना इस इन दो ब्रिजेस पे, तो 20% ऑफ रेगुलर कम्यूटर ट्रैफिक स्विच टू अ स्लाइटली लॉन्गर ऑल्टरनेटिव रूट. तो ये जो लोग हैं who were using the bridges, that is the people who use automobiles. So what they did was they स्विच टू एन ऑल्टरनेटिव रूट. वो एक दूसरे रूट पे चले गए जो इम्प्रूव हुआ. तो अगर वो दूसरे रूट पे चले गए तो दे आर यूजिंग दैट रूट विच इज बेनिफिटिंग देम इंस्टेड ऑफ द रूट विच इज कॉस्टिंग देम मोर. और हमारा इधर था कि द एंटायर कॉस्ट ऑफ समथिंग फ्रॉम विच दे वुड रिसीव नो बेनिफिट. तो दैट इज वाई डी तो डायरेक्टली नेगेट कर रहा है ना, क्योंकि 20% लोग तो उसी रूट पे शिफ्ट हो गए जिसके लिए वो लोग पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं. तो इट इज डायरेक्टली नेगेटिंग द स्टेटमेंट. So that is why D is the answer. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll move to question number 17. 17 पढ़ लो एक बार, then we'll discuss it together. Also guys 17 का ना आंसर चाहिए मुझे, हम नहीं डिस्कस करेंगे ये वाला. 17 is easy, काफी easy है ये. पढ़ लो. we'll start at 1935. ये देखो टाइम है इधर 1935 को 7:35 को we'll start discussing again. Any word which you are finding difficult or want me to explain, please बोल दो.
What is defrosting vent? A defrosting vent मतलब आप let's say this does not happen in India. Like we don't have that much of its use in India. It's basically something अगर कुछ जमा हुआ रहता है ना, so it just melts ice quickly. Like frost को ये defrost कर देता है. और jeopardize मतलब किसी को प्रॉब्लम में डालना. तो in this like jeopardizes the validity मतलब ये जो सेंटेंस है उसका जो ट्रूथफुलनेस है उसको आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो, मतलब बेसिकली वीकन कर रहे हो. Guys, I do not see any answer. ये क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ये क्वेश्चन. Okay, I see two answers. Um, very good, Ayush and Gautam. Good job. So we'll just start discussing. The ice on the front of the windshield of the car has formed when moisture condensed during the night. कार का जो विंडशील्ड है उधर आइस जमा है. क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो गया रात को. So the ice melted quickly after the car was warmed up the next morning because the defrosting vent, which blows only on the front windshield, was turned on full force. तो ये जो आइस था जो रात में जमा था on the car, so this warmed up till the next morning because the defrosting vent, जो vent है, that blows only on the front windshield and it was turned on full force. तो इधर दे आर एक्सप्लेनिंग कि आइस मेल्टिंग का रीजन क्या है. इधर दे आर सेइंग द आइस मेल्टेड क्योंकि डिफ्रॉस्टिंग वेंट एकदम फुल फोर्स में चल रहा था इसीलिए इट मेल्टेड. बट वी हैव टू नेगेट इट. वी हैव टू आइदर स्टेट कि आइस इससे नहीं लाइक मेल्ट हुआ, इसका रीजन दूसरा कुछ है. तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन इज डिस्कसिंग. ए, The side window had no ice condensation on them. ठीक है, तो उधर कंडेंसेशन नहीं हुआ. ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये neither strengthen कर रहा है neither weaken कर रहा है. ये just एक simple statement है. Option B is saying even though no attempt was made to defrost the back window, ice there melted at the same rate as did the ice on the front windshield. अब ये देखो फ्रंट विंडशील्ड में हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रॉस्टिंग वेंट को एकदम फुल फोर्स में चला दिया. बट इधर दे आर सेइंग कि बैक विंडो में तो हमने नहीं ये नहीं किया. बट बैक विंडो अगर 10 मिनट में उधर का आइस गला तो फ्रंट विंडशील्ड का भी सेम ही हुआ. तो इसका मतलब क्या है, बैक में तो कोई डिफ्रॉस्टिंग वेंट नहीं था. तो इसका मतलब है ये जो आइस गला दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफ्रॉस्टिंग वेंट. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड इन आवर कंक्लूजन. So B seems like a pretty solid answer. Let's go to C. The speed at which ice on a window melts increases as the temperature of air blown on the window increases. The speed at which जिस स्पीड से एक विंडो के ऊपर आइस मेल्ट हो रहा है ना वो इंक्रीज हो जाता है as temperature blown on the window increases. तो ठीक है, this sounds तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि जिसके कारण हमने डिफ्रॉस्टिंग वेंट को चलाया आइस मेल्ट हो गया. और ये बोल रहा है कि जितना जल्दी हम डिफ्रॉस्टिंग वेंट को चलाएंगे
उतना जल्दी आइस मेल्ट होगा, तो ये तो वीकेंड कर ही नहीं रहा, ये उल्टा स्ट्रेंथन कर रहा है. ऑप्शन डी इज सेइंग कि द वार्म एयर from the defrosting vent for the front windshield cools rapidly as it dissipates through the rest of the car. अब guys, dissipates का मतलब does anyone know? Dissipate basically मतलब है evenly spread हो जाना. तो इधर बोल रहा है कि the warm air from the defrosting vent for the front windshield cools rapidly as it dissipates throughout the rest of the car. आप फ्रंट विंडशील्ड में जो दे रहे हो गर्म हवा, तो वो जब कार के पीछे आ जा रहा है ना, तो वो ठंडा हो जा रहा है. तो दिस इज नॉट वीकेनिंग. स्ट्रेंथन थोड़ा बहुत कर रहा है, बट वीकेंड तो कर ही नहीं रहा. दैट इज व्हाई बी इज द आंसर. इज दिस क्लियर? ये बहुत इजी था. आई एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू आंसर दिस. ओके, आई सी आंसर्स. 17 I hope it's clear क्योंकि ये बहुत easy था. Let's move to 18. Okay, also guys, if I take the class till 8:45, 8:50, किसी को कोई problem है क्या? No, Ayush, B is the answer क्योंकि we discussed ना. देखो A में क्या हुआ? A में they are saying side window had no condensation. बट हमें तो बात करना है कि ये डिफ्रॉस्टिंग वेंट के कारण ये नहीं हुआ. So this is not offering any explanation. This is just a simple statement. So A is not the answer, B is the answer. Is it clear? I'll send the answers only. Don't worry about it. Also, guys, does anyone have a problem if I keep the class till 8:50? Like not 8:50, 7:50. I'm sorry. Ayush, not 8:50. I'm sorry. I meant 7:50. Okay, then we can solve all the questions. Also, guys, हम ना वो strengthening वाला किन किन लोगों ने solve किया यार, honestly बता दो. जो मैंने worksheet भेजा था. Okay, Aisha solved it. Abhipsha solved it. Anyone else? Okay, then the people who solved it, मेरे WhatsApp पे या email पे email me the answers. क्योंकि हम ऐसे randomly नहीं भेजेंगे. Like show me that you are working and I'll send you the answer sheet. Okay. मैम नंबर दे दीजिए अपना. हम ईमेल आईडी दे रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं. यस मैम. क्योंकि ईमेल में ना भेजने में इट्स इजियर, क्योंकि पीडीएफ अटैच कर देते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो ईमेल कर देना एंड आई सेंड द आंसर्स. ये वीकेंडिंग का शीट वंस वी कंप्लीट आई आल्सो सेंड द आंसर्स. डोंट वरी. ओके गाइस, ये पढ़ लो, देन वी विल डिस्कस दूसरा चीज. वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, 18 क्वेश्चन पढ़ लो, देन वील मूव टू द आंसर्स.
Okay, has anyone finished or done with it? Okay, let's start 18 एक साथ. Okay, so एक बार options देख लो, then we'll start discussing. Okay, we'll just start discussing. Opponents of laws that require automobile drivers and passengers to wear seatbelts argue that in a free society, people have the right to take risks as long as they do not harm others as a result of taking them. As a result, they conclude that it should be each person's decision whether or not to wear a seat belt. तो जो लोग सीट बेल्ट पहनना नहीं चाहते ना, पैसेंजर हो या ड्राइवर हो, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो फ्री समाज में रहते हैं और हमें तो रिस्क लेने का हक है. अ, तो जब तक हम लाइक दूसरे किसी अपने आसपास वालों को हार्म नहीं पहुंचाते, तो रिस्क लेना तो अपना बनता है. तो दिस इज वाई whether or not I want to wear a seat belt or not, that is my decision. So what we have to negate? We have to negate that it is not each person's decisions to wear or not wear a seat belt. We have to negate this statement. A पे आते हैं. Many new cars are built with seat belts that are wait, has anybody answered? Guys, please answer कर दो यार. Many new cars that are built with seat belts that automatically fasten when someone sits in the front seat. अब ये देखो, ये बोल रहा है कि many new cars are built ऐसे कि सीट बेल्ट ऑटोमेटिकली फासन हो जा रहा है when somebody sits in the front seat. और जो पीछे वाले लोग बैठ रहे हैं वो, क्योंकि इधर तो दे आर सेइंग ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स, तो दिस इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिंग आवर कंक्लूजन कि ये एक पर्सन का इंडिविजुअल चॉइस नहीं है कि वो सीट बेल्ट पहनेंगे या नहीं, है ना. तो जो लोग ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रेट्स फॉर ऑल ऑटोमोबाइल ओनर्स आर हायर बिकॉज ऑफ द नीड टू पे फॉर द इंक्रीज्ड इंजरीज और डेथ्स ऑफ पीपल नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स. अब ये देखो, ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस जो लोग ले रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि फॉर ऑल ऑटोमोबाइल ओनर्स आर हायर्ड, जो ओन करते हैं ये गाड़ी वगैरह, क्योंकि दे नीड टू पे फॉर द इंक्रीज्ड इंजरीज और डेथ्स ऑफ पीपल नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स. सो इस इधर दे आर सेइंग कि एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग द रिस्क. बट इधर ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं ना दैट इट्स हर्टिंग. तो दैट इज व्हाई बी कैन बी एन आंसर. सी बोल रहा है, पैसेंजर्स इन एयरप्लेन्स आर रिक्वायर्ड टू वियर सीट बेल्ट्स ड्यूरिंग टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स. Passengers in airplanes are required to wear seat belts. कब? जब टेक ऑफ करेगा लैंडिंग के समय. तो दे आर रिक्वायर्ड, बट दिस इज नॉट सॉल्विंग आवर कंक्लूजन. डी बोल रहा है, द रेट ऑफ ऑटोमोबाइल फेटलिटीज इन स्टेट्स that do not have mandatory seat belts laws is greater than the rate of fatalities in states that do have laws. तो ये तो हमारा ये कंक्लूजन को स्ट्रेंथन कर रहा है. डी बोल रहा है कि जिन जिन स्टेट में ना ऑटोमोबाइल में ये इंजरीज लोगों को होती है, दे डू नॉट हैव मैंडेटरी सीट बेल्ट लॉज. इधर ज्यादा है जिनके मैंडेटरी लॉज नहीं है देन रेट ऑफ फैटलिटीज दैट डू नॉट हैव सच लॉज. So that is why B seems like the most possible answer in this case. Is this question clear? Yeah, option B is the correct answer. Very good, Ayush and Gauri. Also, एक बार देख लो, do I need to explain it again or not?
आयुष आपका आंसर बी करेक्ट था, तो आप मे बी बोल रहे हो क्या आप लाइक तुक्के से आंसर दिया? नो नो इट्स फाइन, क्योंकि एवरीबडी डज दैट. विच पार्ट डू आई एक्सप्लेन आयुष? आप क्वेश्चन समझे हो ना? Okay, do I need to explain again? Then we'll move on to the last question and we are done for today. एक बार बता दो सब. Yes, Ayush, you are right. You are absolutely right. Okay, then we'll move on to question 19, that 20. That is the last question for today. In question 20, एक साथ पढ़ते हैं question. Dental researchers recently discovered that toothbrushes can become contaminated with bacteria that cause pneumonia and strep. And ये sore throat होगा guys, ये गलत लिखा है. तो डेंटल रिसर्चर्स व्हाट डिड दे फाइंड आउट कि ये जो टूथब्रशेस होते हैं ना, दैट कैन बी कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, जो ये दो डिजीजेस कॉज करते हैं. दे ऑल्सो फाउंड आउट that contamination usually occurs after toothbrushes have been used for 4 weeks. तो अगर आप एक टूथब्रश को 4 वीक तक यूज करोगे तो आपका कंटामिनेशन होगा. तो उसी रीजन के लिए पीपल शुड रिप्लेस देयर टूथब्रशेस एटलीस्ट वंस अ मंथ. तो गाइज यहाँ हमारा कंक्लूजन क्या है? पीपल शुड रिप्लेस देयर टूथपेस्ट एटलीस्ट वंस अ मंथ. तो यहाँ पे हमें इसको नेगेट करना होगा कि आइदर ये दे नीड टू रिप्लेस इट आफ्टर 10-15 मंथ और दे नीड टू रिप्लेस इट एवरी डे, जो मर्जी हो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड वंस अ मंथ. है ना? क्वेश्चन क्लियर है सबको? C is not tell about car, they not tell about car, why C is not answer. अच्छा आयुष, आर यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 18? अच्छा उसमें ना हम इसके बाद जाते हैं. लेट्स नॉट लूज ट्रेन ऑफ थॉट. Okay, let's go to question like option A. Dental researchers could not discover why toothbrush contamination occurs only after they have been used for 4 weeks. डेंटल रिसर्चर्स को अभी तक पता नहीं चला वाई दीज इन्फेक्शंस ऑकर जब टूथब्रशेस को 4 वीक तक हम यूज कर रहे हैं. बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया? ये they recently discovered that toothbrushes can become contaminated with bacteria. So that is why you replace it once a week. This is not affecting our conclusion in any way. So I don't think 20 का A is the answer. B बोल रहे हैं the dental researchers failed to investigate contamination of toothbrushes by ये सब. देखो B भी नहीं होगा, सेम लॉजिक A का है. ये दो समझे क्या गाइस? अब सी में आते हैं. द डेंटल रिसर्चर्स फाउंड that among people who use toothbrushes contaminated with bacteria that cause pneumonia and strep throat, the incidence of diseases was no higher than people who used uncontaminated toothbrushes. अब ये देखो, सी में बोल रहा है कि द पीपल, जो लोग लाइक ऐसे टूथब्रश यूज कर रहे हैं जिसमें निमोनिया और ये होता है, ये कुछ ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता देन नॉर्मल पीपल हु यूज इट अनकंटामिनेटेड टूथब्रशेस. तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है कि दे नीड टू रिप्लेस देयर टूथब्रश एटलीस्ट वंस अ मंथ, दिस डज नॉट होल्ड. क्योंकि जो लोग लाइक कंटामिनेटेड वाला यूज कर रहे हैं उनको भी ये डिजीज हो रहा है, जो अनकंटामिनेटेड यूज कर रहे हैं उनको भी डिजीज हो रहा है. मतलब दिस इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम आवर टूथब्रश. में भी आपको, आप जो खा रहे हो उससे हो रहा है, मे बी आप ज्यादा आइसक्रीम खा रहे हो इसीलिए आपको हो रहा है, बट नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्रश. तो सी इज अ वेरी वेरी वैलिड आंसर. अब डी देखो. The dental researchers found that people who rinsed their toothbrushes thoroughly in hot water
after each use were as likely to have contaminated toothbrushes as people who only इधर we are talking about how people clean their toothbrush. इससे फर्क नहीं पड़ता. That is why C is the answer. Is this question clear, guys? इसका आंसर है C. Why is it C? आप लोग एक बार देख लो. हाँ गौरी, you're correct. You're absolutely correct. Milind, no, it's not D, it's C. Correct, Ayush. Okay. ये 20 वाला समझ आया क्या? Okay, I'll repeat. Question, guys, बहुत easy है. ये बोल रहा है the researchers guys, I'm so sorry. The dental researchers recently discovered that जो आप toothbrush use करते हो that can be contaminated with pneumonia and strep throat. Where does these bacteria lie? In your toothbrushes. They also found that ये जो contamination होता है ना, ये कैसे होता है? This happens after you have used your toothbrush for 4 weeks. इतना तक clear है? So since this contamination occurs after 4 weeks, that is why you should replace your toothbrushes at least once a month. मतलब आप लोग एक महीने में 4 weeks होते हैं ना, that is why you replace your toothbrush at least once a month. क्योंकि फिर ऑथर के लॉजिक से फिर आपको ये 2 डिजीजेस नहीं होंगे. अब हमारा करेक्ट आंसर है ये वाला सी. डेंटल रिसर्चर्स फाउंड कि जो टूथब्रश कंटामिनेटेड बैक्टीरिया यूज करते हैं उनका भी ये डिजीज हो सकता है, नहीं हो सकता है, और जो नहीं यूज करते उनका भी हो सकता है. टूथब्रश के ऊपर बैक्टीरिया रहने से नहीं रहने से हमारा फर्क नहीं पड़ता. नाउ इज द क्वेश्चन क्लियर, आयुष? इधर का कंक्लूजन आप खुद आइडेंटिफाई करो क्या हो सकता है. What did I say? Conclusion means with what intention did the author write the passage? What did the author intend for us as readers to know? आयुष आप खुद करो, आप खुद आइडेंटिफाई करो आपका कौन सा हो सकता है इधर कंक्लूजन. Anybody can try. People replace say. Exactly. This is our conclusion. For that reason, people should replace their toothbrushes at least once a month. ये author का conclusion है. Is the question now clear? And also the option. Are there any doubts? Others, like, do you have doubts? Because I'm explaining again. Any question, like आज पूरा दिन जो किया. Okay, guys, if this is clear, so what I'll do is I will attach this sheet. Oh हाँ, कार्ड वाला 18. अब ये 18 का देखो. Passengers in airplanes are required to wear seat belts during takeoffs and landings. But इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? Automobile drivers and passengers to wear seat belts. तो इधर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? Passengers in airplanes. So when our question, what the question deals with is not similar to the answer option given, then how can C be the answer? आप लोग तो C देखोगे और देखोगे कि इधर दिया है passengers in airplanes. तो आप तो first C को eliminate करोगे. Ayush, is this clear? This is why we eliminated C. क्योंकि ये
एयरप्लेन की बात कर रहे हैं. Any other doubts, guys? I'll attach this sheet. I want you to solve all 20 questions. Then we will, next class say, we will start another chapter of critical reasoning. Okay, so if मैम ओके वाला चैप्टर हाँ कौन सा था? कौन मैम बोला? हाँ हाँ से चैप्टर कौन सा था फिर मैम? हाँ से हेलो हेलो मैम, इस चैप्टर का नाम क्या था फिर? क्रिटिकल इसका रीजनिंग है तो क्रिटिकल रीजनिंग का वी आर डूइंग वीकनिंग स्टेटमेंट्स. स्ट्रेंथनिंग का हमने पहले खत्म कर लिया. वी टुक 3 क्लासेस. ये आज हमारा वीकनिंग खत्म हुआ. नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वो अक्षत का क्लास है, तो आई थिंक अक्षत विल स्टार्ट विद अजम्पशंस. ठीक है. अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में, यू नो माई ईमेल, लाइक जस्ट इन्फॉर्म कर दो. आप लोग चाहे तो वो गूगल क्लासरूम के कमेंट में भी यू कैन राइट कि मैम इस क्वेश्चन में आई एम हैविंग डिफिकल्टी. देन आई जस्ट व्हेन आई एम टेकिंग द नेक्स्ट फ्राइडे वाला क्लास आई एक्सप्लेन अगेन. इज दिस क्लियर? आई एम स्टॉपिंग. आई एम आई स्टॉप शेयरिंग. क्लियर मैम. Okay, guys, anything you want to say or doubts? Otherwise, class is over. ओके मैम. You're welcome. How can you write answer? अच्छा आयुष, what do you mean by how can you write answer? Like MCQ रहेगा ना? You तो just have to mark. What do you mean by that? How can you write answer? अच्छा. No, don't be sorry ना यार. ये तो class है. We're just talking about it. So guys, if there are no more doubts, then I'll just log out. Bye.